you are not lost in your life, just you don't have a goal, right? As human body cannot live without oxygen, same as life cannot live without goal, है ना? And I'm seeing a lot of young men, they are completely wrong about having a goal. उन्हें लगता है that goal is like a roadmap to become a millionaire, a big task which they need to complete. ना, a goal can be as small as making your bed every single day. And as a man, our main goal is to become highly successful, जहाँ पे हम अपने लिए तो provide कर रहे हैं, but we are providing for our families itself, है ना? And I'm going to tell you the exact method how to do it. So let's discuss like what are the major problem you are going to face if you don't have a goal in your life. पहला, you are going to indulge yourself in bad habits. You will be not aware of the opportunities which can change your life. You will never dream big. You will be satisfied with your life. You will be comfortable in choosing a mediocre life. You will not be meeting people who are better than you in every aspects of your life. And lastly, you will not aware of your own potential. एंड यहाँ पे मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? जब भी तुम्हारे लाइफ में इफ़ यू डोंट हैव अ गोल, राइट, तुम अपनी लाइफ में वो डिसीजंस चूज करते हो जहाँ पे तुम लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट? यू आर मेकिंग दोस डिसीजंस विच आर सेटिस्फाइंग अदर्स, ना कि तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट? एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग अ लाइफ विच इज असाइन टू यू एंड लिविंग द लाइफ दैट यू वांट टू लिव. या देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. एंड ये तब होता है जब तुम्हारे पास गोल नहीं रहता. एंड जब तुम्हारे पास गोल नहीं रहता तुम वो डिसीजन चूज करते हो जहाँ पे तुम लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो बट यू आर नॉट सेटिस्फाइंग योर सेल्फ. एंड ये सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज रहता है व्हेन यू डोंट हैव अ गोल. सो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट्स द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ गोल, राइट? पहला, you are going to have mental clarity and a direction to live your life. You are going to live your life like a man on a mission who knows what he is going for and he is going to get it. You are going to earn respect from the people around you because you are not that purposeless soul around them. You will be fulfilled from inside and you are going to realize that you are not wasting your life. Fifth, you'll be adding value to yourself and your life. And यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा that जब भी तुम्हारे पास गोल रहने वाला है, राइट, यू आर नेवर गोइंग टू गेट बोर्ड इन योर लाइफ इटसेल्फ. क्यों? बिकॉज यू आर पुटिंग योर माइंड, यू आर पुटिंग योर बॉडी ऑन बिल्डिंग समथिंग वैल्यूएबल एंड जिसके वजह से तुम अपने लाइफ में मीनिंग डालते हो. जहाँ पे तुम अपना माइंड और अपना बॉडी कनेक्ट करते हो ऑन बिल्डिंग समथिंग वैल्यूएबल, दैट्स द मोमेंट तुम अपने लाइफ में मीनिंग डालते हो एंड इसके वजह से यू आर नेवर गोइंग टू गेट बोर्ड आउट ऑफ योर लाइफ. That's the biggest advantage of having a purpose, having a goal itself. तो अब हम डिस्कस करते हैं what are the major belief which is wrong regarding goal. पहला, you think that you are young and you still have time. So ये सबसे बड़ा मेजर बिलीफ है which is having, जो कि सबसे ज़्यादा यंग मैन के पास है, राइट? उन्हें लगता है that भाई हम तो यंग हैं, हमारे पास टाइम ही टाइम है. They think that they can be rich and successful whenever they want. सो मैं अभी तुम्हें एक चीज़ सोचने को बोलूँगा, राइट? जस्ट थिंक अबाउट द पर्सन दैट यू वांट टू बिकम, जो तुम्हारा रोल मॉडल है, राइट? वो अपने लाइफ में वो पोजीशन में तभी पहुँचा है जब वो 20 से 25 साल मेहनत किया है, राइट? सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू कैन अचीव द सेम लेवल ऑफ सक्सेस बाय वर्किंग 3 to 5 years, राइट? डेफिनेटली तुम वो लेवल में पहुँचोगे बट इट्स गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम. It's gonna take your lot of time, it's gonna take your lot of energy and you need to do ton amount of work that you have never imagined, right? So अब तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी सक्सेसफुल, कभी भी रिच बन जाऊंगा, then you are completely wrong. ऐसा नहीं होगा. That's the truth, right? टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, एनर्जी जाएगा, बट तुम वो पोजीशन में पहुंचोगे. That's why अगर तुम अपने अर्ली 20s में हो या फिर अपने टीन एज में हो, राइट, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली, राइट? क्योंकि तुम्हारे सक्सेस का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम 50 या फिर 60 साल में सक्सेसफुल बन रहे हो. क्यों? क्योंकि तुम अपने लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर पाओगे दैट यू ऑलवेज वांट टू डू. दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टार्ट अर्ली इन योर लाइफ. सो सेकेंड डिसबिलीफ है, यू आर नॉट सीरियस टूवर्ड्स योर लाइफ. आई अंडरस्टैंड दैट यू आर यंग
and your main goal is to enjoy life, your main goal is to fun, right? जितना ज़्यादा हो सके enjoy करे, fun करे, I understand it. बट सबका भी एक लिमिट रहता है, सबका एक एक्सटेंट रहता है, एंड जब वो लिमिट टूटता है, राइट, वो चीज़ हमारे लिए खतरा होता है, राइट. सो अभी मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन दूंगा. ऑप्शन नंबर 1, enjoying for 5 years and struggle for 50 years, या फिर ऑप्शन नंबर 2, struggle for 5 years and enjoying for 50 years. If you are smart enough, then तुम definitely ऑप्शन नंबर 2 चूज करोगे, राइट, एंड तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या सही है. दैट्स वाई डू विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ, नॉट द थिंग विच यू वॉन्ट टू डू, राइट. एंड स्पेशली जब तुम यंग रहते हो, इन योर टीन एज और इन योर अर्ली 20s, तुम्हें अपना टाइम, अपने लाइफ को वो जगह इन्वेस्ट करना चाहिए विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ नीडेड, एंड बाद में तुम वो चीज़ें करो विच यू वॉन्ट टू डू, लाइक हैविंग फन, enjoying your life, clubs and all, parties and all, right? But at first, focus on the things which is required, which is necessary, which is needed to build your life. So rather than wasting your time, take action towards building your life. Third, you're waiting for something happen to you. Yeah. तुम्हें लगता है दैट मैं कभी आउट ऑफ अ सडन आई एम गोना बी लकी, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा हो जिसके वजह से आई शुड गेट अ लाइफ लेसन, राइट. एंड बिलीव मी, ना ही तुम लकी बनने वाले हो, ना ही तुम्हारे साथ कोई बुरा चीज़ होगा जिसकी वजह से तुम्हें कोई लाइफ लेसन मिलेगा, राइट. सो तुम वो शेडी जोन से बाहर निकलो, वो नेगेटिव डिल्यूजन से बाहर निकलो दैट सम डे यू आर गोइंग टू बी लकी और कुछ बुरा होगा तुम्हारे साथ. कुछ नहीं होने वाला ऐसा. सो दैट्स वाई स्टॉप वेस्टिंग टाइम, वो नेगेटिव डिल्यूजन से बाहर निकलो एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टार्ट बिल्डिंग योर लाइफ. तो आवर फोर्थ डिसबिलीफ इज यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर पोटेंशियल. अगर तुम अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर रहे ऑन बिल्डिंग समथिंग, राइट, इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग योर लाइफ ऑन बिल्डिंग समथिंग वैल्यूएबल, देन यू आर अटरली वेस्टिंग योर लाइफ. तुम सिंपली अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हो भाई. अगर तुम अपनी लाइफ को बिल्ड करने में, अगर तुम अपने माइंड को बिल्ड करने में, अपने बॉडी को बिल्ड करने में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, राइट, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ. दैट्स इट. एंड तुम्हें तब तक के पता नहीं चलेगा दैट तुम कितने पावरफुल हो जब तक कि तुम अपने आप को चैलेंज नहीं करते, राइट. यू आर नॉट गोइंग टू नो दैट हाउ पावरफुल यू आर जब तक कि तुम अपने आप को चैलेंज नहीं करते. तुम्हें तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल तब तक के पता नहीं चलेगा जब तुम अपने माइंड और अपने बॉडी को चैलेंज नहीं करोगे. एंड द ओनली वे टू डू दिस इज बाय बिल्डिंग समथिंग, राइट. एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यंग मैन नाउअडेज दैट वो अपने एज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, राइट. उन्हें लगता है कि हम ये एज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. बट द ट्रूथ इज सक्सेस डजंट सी योर एज, इट सी हाउ मच कैपेबल यू आर. दैट्स द ट्रूथ. सक्सेस को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम 16 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल के हो, इवन 12 साल के हो, राइट. सक्सेस को बस इससे फ़र्क पड़ता है दैट जो बंदा मेरे सामने है, इज इट कैपेबल टू हैंडल दैट लेवल ऑफ सक्सेस. दैट्स इट, राइट. सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन पोटेंशियल एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर फकिंग एज, राइट. सो अब हम बात करते हैं द बिगेस्ट एडवांटेज ऑन बिल्डिंग योर लाइफ. पहला, you are gonna be in great health, you are a millionaire, you have a beautiful wife and a great social circle. You are living the life of top 1% where you have achieved financial freedom, time freedom and location freedom. You are fulfilling the needs of your closed ones. You can get them whatever they want, whatever they need. You don't need to adjust for anything. You can get anything without looking at the price tag. Your parents are proud of you. Their eyes are filled with tears, not of regret, but of happiness. You are living the life that you always want to live, and there's no regret when you are in your deathbed. So when you put your mind and your body on building something, right, building something valuable, that's the time when you add meaning to your life. And ये हम कैसे करेंगे? By following build your reality framework. So build your reality framework क्या कहता है? It says that you are not lost in your life. It just you are bored. And तुम बोर क्यों हो? क्योंकि because you don't have a goal, right? You are never lost in your life. You are just bored. Why? Because you don't have a goal.
सो हम पहले फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे टू गेट टू नो कि तुम बोर क्यों हो, राइट? हाउ टू एड मीनिंग टू योर लाइफ. सो ये हम कैसे करेंगे? फ्रेमवर्क नंबर 1, जूम आउट. सो अभी तुम अपने लाइफ को 1 सेकेंड के लिए जूम आउट करो, राइट? जस्ट डू इट नाउ. जूम आउट योर लाइफ फॉर अ सेकेंड एंड पेपर में अपनी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लिखो, विच इज योर हेल्थ, विच इज योर वेल्थ एंड विच इज योर रिलेशनशिप. एंड ध्यान से वो 3 एस्पेक्ट्स को देखो अपनी लाइफ के एंड देखो कि विच पार्ट ऑफ योर लाइफ नीड्स इम्प्रूवमेंट. इज इट योर हेल्थ, इज इट योर वेल्थ, इज इट योर रिलेशनशिप और इज इट ऑल ऑफ देम, राइट? 2 सेकेंड के लिए उसको इंट्रोस्पेक्ट करो एंड देखो दैट विच पार्ट ऑफ माई लाइफ नीड्स इम्प्रूवमेंट, राइट? मुझे कौन से पार्ट ऑफ लाइफ में बेटर बनना है, राइट? जस्ट डू इट फॉर अ सेकेंड एंड यू विल गेट टू नो दैट तुम्हें क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा, राइट? एंड वाइल इन दिस प्रोसेस अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो दैट एम आई इन दी बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ? इफ नॉट, देन आई नीड टू इम्प्रूव दैट पार्ट ऑफ इट. एम आई वेल्दी इनफ जहां पे मैं खुद के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग फॉर माई फैमिली? If the answer is no, then work on improving that part of your life. And lastly, ask this question that do I have people around me who are better than me in every aspects of my life? If the answer is no, then work on improving that part of your life. So अब हम second framework के towards बढ़ते हैं, which is your building your 3 blocks of your life. एंड द मोमेंट तुम जूम आउट वाला प्रोसेस, जूम आउट वाला फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो, तुम्हें एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि तुम कितने पानी में हो, राइट? तुम्हें पता चल जाता है कि विच पार्ट ऑफ योर लाइफ नीड्स इम्प्रूवमेंट, राइट? एंड आई बिलीव द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस, उनको अपने लाइफ के तीनों एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करना है, विच इज़ देयर हेल्थ, विच इज़ देयर वेल्थ एंड विच इज़ देयर रिलेशनशिप. ये हम कैसे बिल्ड करेंगे? क्रिएट अ विजन, make it big and delusional, then reverse engineer that into 10-year, 1-year, monthly, weekly, and daily goals. Make it big and chunk it down into small pieces. For health, तुम्हारा मेन गोल ये रहना चाहिए, your main big goal should be to have 6-pack by the end of this year. So तुम्हारा small goal क्या रहना चाहिए? Cutting out sugar from your diet slowly every single day. फॉर योर वेल्थ, तुम्हारा मेन बिग गोल ये रहना चाहिए टू बिकम अ मिलियनर बाय द एज ऑफ 28. एंड तुम्हारा स्मॉल गोल क्या रहना चाहिए? लर्निंग अ हाई वैल्यू स्किल एवरी डे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. एंड फॉर रिलेशनशिप, तुम्हारा मेन गोल क्या रहना चाहिए? दैट यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद बिलियनर्स. एंड तुम्हारा स्मॉल गोल क्या रहना चाहिए? To improve your social skills and say hi to a random stranger every single day, right? That's how you achieve those big goals, by chunk it down, by breaking it down into small steps. That's जो भी सक्सेसफुल पर्सन को तुम जानते हो, राइट? फर्स्ट दे क्रिएट अ बिग विजन, देन उनको वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, right? What's their small step, what's their baby step which they need to follow, and that's how you achieve your goal. सो अभी तुम्हें पता चल गया है दैट तुम्हें अपने लाइफ के कौन से पार्ट को इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है एंड क्या मेथड को फॉलो करना है. तो मैं ये वीडियो को एक कोट के साथ एंड करना चाहूँगा, विच इज़ यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर बोर्ड, एंड द ओनली सॉल्यूशन टू क्योर योर बोर्डम इज बिल्डिंग. बिल्ड अ स्किल, बिल्ड अ बिजनेस, build a brand, build your body, build your mind, build something, because building is what gives meaning to life. That's it. So that's it for the video itself. अगर तुम्हें लगता है that you find it useful, if you find it valuable enough, then you can like, share and subscribe my channel, and I'll see you in the next one. And do fill the form in the description to book a 1-to-1 to improve your social game, to improve your health and to improve your monetization skill. Do fill that Google form, and thanks for watching. Let's create, let's build, and let's lead. Thank you.